Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. Hope you all are well students. So as you already know that in the previous session we learned about introduction of Boolean algebra. We learned some basic Boolean operators and basics of Boolean algebra. That what is Boolean algebra, how it is work, what is the meaning of Boolean, all the basic things related to Boolean algebra we cover in the previous session. If you missed that session, please check the description of this video. You will get the link there, students. Okay. If you are new to my channel, please subscribe my channel for all upcoming videos. So let's start our today's session. In today's session, we learn about logic gates. We have some basic logic gates and some universal logic gates. Okay, we discuss one by one everything in today's session. And at the end of the session, we also learn that how we can use this logic gate and design our own circuits. Okay. So, what is gate? First of all, a gate is a simply an electronic circuit which operates one or more input signal and always produce an output signal. Okay, that means कि हम कुछ input signal देंगे, okay, and then some output हमारे पास वहां पर produce होगा, right? Gates are digital two state. Two states का मतलब यहाँ पर आता है students that low value, high voltage, okay, 0 and 1 because the input and output signals are either 0 or 1. So जितने भी हमारे gates हैं वो two state circuits हैं. Two state circuits का मतलब जहां पर input और output signals होंगे in the form of 0 and 1. Okay. Gates are often called logic circuits. Why? They can be analyzed with Boolean algebra. Okay. Gates are classified into two types. Okay, basic gates and derived gates or universal gates, you can say that. So basic gates हमारे तीन होते हैं students, not and और derived gate होते हैं nor, NAND, XOR, XNOR. ओके, derived का मतलब होता है जो इनकी हेल्प से बने, जो बेसिक गेट्स की हेल्प से बने. ओके, so this is the classifications of logic gates. Again I explain it to you students. Basic gates एंड डेराइव्ड गेट. लॉजिक गेट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. बेसिक गेट्स हमारे तीन, नॉट एंड और डेराइव्ड गेट हमारे फोर, एंड नॉर, नैंड, एक्सऑर, एक्सनॉर. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट गेट. नॉट गेट के बारे में बात करते हैं. सिंपल कुछ की पॉइंट्स हैं जो हर गेट के बारे में आपको ध्यान रखने हैं, उससे आप कभी नहीं भूलेंगे. ओके, नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है. ओके, आप जो भी इनपुट देंगे आउटपुट उसका अपोजिट होगा. दैट मीन्स अगर आप 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 आएगा, अगर आप 1 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 आएगा. सिंपल सा लॉजिक है. ओके स्टूडेंट्स, दूसरा, नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं. ओके, इन्वर्टर का क्या मतलब होता है, जहां पर इन्वर्ट होता है मीन्स अपोजिट हो रहा है, इसलिए हम इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं. ओके, द आउटपुट इज समटाइम्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स अपोजिट. किसी भी वर्ड का हम यूज कर सकते हैं. अब कोई भी नया वर्ड अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको देख के हमें सोचना नहीं है कि ये क्या वर्ड है, ये कौन से गेट से रिलेटेड है. सो अगर नॉट गेट है तो वहां पर इन्वर्टर वर्ड भी यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी यूज हो सकता है. ओके, सिंपल सा लॉजिक है, जो भी हम इनपुट देंगे उसका अपोजिट हमारा आउटपुट होता है. ओके, दिस इज द symbol of NOT gate and this is the truth table of NOT gate. ट्रुथ टेबल के बारे में भी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था. हमने ये भी सीखा था कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं. इफ यू मिस इट then please check the description of this video. You will get the link there. Okay, so this is the symbol of NOT gate student and this is the truth table. अगर आप 0 दे रहे हैं तो 1 आएगा आउटपुट, अगर आप 1 दे रहे हैं तो 0 आउटपुट आएगा. ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट वी मूव टू द ऑर गेट. ऑर गेट कैसे काम करता है, और गेट में आप दो इनपुट भी दे सकते हैं, दो से ज्यादा भी दे सकते हैं. ओके, बट आउटपुट 1 ही होगा. ओके, दो इनपुट भी दे सकते हैं, दो से ज्यादा इनपुट भी दे सकते हैं, आउटपुट 1 ही होगा. ओके, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1
then the output is 1. सिंपल सा लॉजिक है. ओके, इट्स आउटपुट इज, और गेट का मतलब एडिशन प्लस, ओके, लॉजिकल सम ऑफ ऑल द इनपुट्स. ओके, सो कैसे काम करता है एक बार देखते हैं. ये आपका सिंबल हो गया और गेट का प्लस. अब आप देखिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1, दिस इज 1. ओके, यहाँ पर हम बाइनरी पे काम कर रहे हैं. दिस इज बुलियन एल्जेब्रा. बुलियन मीन्स टू, 0 and 1 ओनली. सो 1 प्लस 1 को 2 नहीं लिखना है, क्योंकि बाइनरी का पार्ट सिर्फ 0 और 1 ही होता है. यहाँ पर 2 का कोई रोल नहीं है. तो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं. सो सिंपली इट वर्क्स स्टूडेंट्स. ओके, 1 प्लस 1 इज 1. So this is the symbol and truth table of OR gate. Next we are having AND gate. AND gate means multiplication, logical multiplication. इसमें भी आप दो या दो से ज्यादा इनपुट दे सकते हैं, बट आउटपुट आपका जो आएगा वो एक ही आएगा. ओके, बट मल्टीप्लीकेशन हम जब भी 0 से करेंगे तो आंसर 0 आता है. दैट मीन्स when the all inputs are 1, then only you get 1 as a output, otherwise 0. Okay, this is the logical symbol of AND gate, student, and this is the truth table of AND gate. So x dot y. Okay, so 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0 and 1 1 1. 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा 0 ही हमें मिलेगा. एंड दिस इज द symbol of AND gate, student. Okay, so don't get confused in the symbol of OR gate and AND gate. This is the symbol of AND gate. Okay, नेक्स्ट वी मूव टू द स्टूडेंट नॉर गेट. अब यहाँ पर आ गया नॉर. हमारे बेसिक गेट्स खत्म हो चुके हैं. नॉर का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, और आपको बताया, आप और से फेमिलियर हो, और के आगे एन लग गया, दैट मीन्स नॉट लग गया. ठीक है, नॉट और, ऐसे समझेंगे हम. तो जो भी और का इनपुट होगा, जो भी और का आउटपुट होगा, उसको इन्वर्ट कर देंगे अगर हम, तो हमारा नॉर गेट बन जाएगा. सो अ नॉर गेट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल्स. सेम लॉजिक है, नॉर गेट में आप दो या दो से ज्यादा भी इनपुट सिग्नल्स दे सकते हैं, बट आउटपुट जो होगा वो आपका एक ही होगा. नॉर गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट. जो भी और गेट आप उस पर अप्लाई करो और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो दैट मीन्स वो नॉर गेट हो जाएगा. ओके, एक बार इसका आप टेबल देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका और गेट है. और गेट के आगे क्या लगा दिया, नॉट गेट. क्या बन गया, नॉर गेट. प्लस होता है, और गेट का मतलब क्या होता है, प्लस. ठीक है, लॉजिकल सम, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया आपने, नॉर गेट बन गया. अब देखो, नॉर गेट में और गेट में, और गेट में क्या होता है, प्लस करते हो, 0 प्लस 0 0 होता है, राइट. 0 हुआ, उस पे इन्वर्ट किया. नॉट गेट का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, नॉट गेट का काम होता है हमारा सिंपली इन्वर्ट करना. अब यहाँ पर अगर मैं एक ब्लॉक और बना दूं, और पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि और गेट क्या कहेगा. और गेट कहेगा 0, ठीक है, 1 1 1. ये आउटपुट हुआ और गेट का. अब नॉर गेट क्या कहेगा, इसका इन्वर्ट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट. नॉट, इसके ऊपर नॉट गेट लगा दिया, तो इसका अपोजिट होके ये मेरे पास आया. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर गेट. और गेट लिया, उस पे नॉट गेट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, नॉर गेट. या आप इस सिंबल को डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो. नॉर गेट के आगे आप इस तरीके से सर्कल बना देंगे, तो ये भी नॉट को रिप्रेजेंट करता है. तो इस तरीके से भी आपका वर्क कर सकता है. ओके, नंबर ऑफ इनपुट आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं. ये चीज हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पर ये सेट ऑफ इनपुट्स हम कैसे लिखते हैं, इस ट्रिक को हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वहां से. इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू क्रिएट एनी ट्रुथ टेबल, जहां पर आपके 3 इनपुट हो, 4 इनपुट हो, 5 इनपुट हो, कितने भी इनपुट हो. तो ट्रुथ टेबल को बनाना बहुत इजी है. प्लीज वॉच द वीडियो एंड देन you can learn how we can create the truth table. Okay students, so this is the basics of NOR gate that we discuss in this session. Now next we move to the NAND gate. Same concept. AND gate हमने पढ़ा, AND gate के आगे नॉट लगाना है, ठीक है, उसका इन्वर्ट करना है.
एंड गेट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो उसी के आगे हमने नॉट लगाना है, सिंपल। इसमें भी क्या करेंगे हम, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स ले सकते हो, बट आउटपुट जो होगा वो वन होगा, ठीक है। उसके बाद द नैंड गेट इज कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ओके। मल्टीप्लीकेशन को शो करता है और उसके में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। सिंपली वर्क करता है नैंड गेट, एक बार देखते हैं, देखिए सिंपल कैसे काम करेगा। ये क्या है, एंड गेट है, उसके आगे नॉट गेट लगाया, बन गया नैंड गेट, ओके। मल्टीप्लाई, लॉजिकल मल्टीप्लाई, कॉम्प्लीमेंट का साइन ये होता है, तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ओके। फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से, अगर आप नहीं बनाना चाहते या सर्कल लगाओ, ये बन गया आपका नैंड गेट। अब एक बार इसका टेबल देखते हैं। पहले यहाँ पे एंड का टेबल, एंड क्या कहता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में वन। तो ये तो हो गया एक्स और वाई का एंड, दिस इज एंड, ठीक है। अब इस पे जब मैंने नॉट गेट अप्लाई किया, तो मेरा ये बना, दैट मीन्स कि नैंड गेट आपको क्या कह रहा है, नैंड गेट कह रहा है व्हेन वी हैव ऑल इनपुट वंस देन आई गिव जीरो, अदरवाइज आई विल गिव वन। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डायरेक्टली इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है, पहले एंड बना लो, एंड का कॉम्प्लीमेंट कर दो, उससे नैंड बन जाएगा, सिंपल। जो भी एंड का आउटपुट आएगा उसका उल्टा करेंगे हम, तो वो आपका नैंड गेट बन जाएगा, ओके स्टूडेंट। फिर आप थ्री सेट्स ऑफ इनपुट के साथ बनाते हो, फोर सेट्स ऑफ इनपुट्स के साथ बनाते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट केस, वो सिंपली आपका वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका एंड करता है, बस उसको इन्वर्ट करना है, ओके स्टूडेंट्स। एक्स और एक्सक्लूसिव और गेट, यहाँ पर भी आप कितने भी सेट ऑफ इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट हमारा वन होगा। एक्सक्लूसिव और गेट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ और गेट, और से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आउटपुट वन होगा, कब, when we have a odd number of ones, okay, the output zero if there are even number of ones in the input, the output one if there are odd number of ones in the input। एक बार इसकी टेबल आप देखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। एक तो इसका सिंबल आप इस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट्स, ओके, ये वाला सिंबल होता है, इसको बन ऐसे, ठीक है। दिस इज द एक्स और गेट। अब यहाँ पर देखो, जहां पर ये देखो सेम इनपुट है ना, तो वहां जीरो है, ऐसे याद रखो। जहां पर सेम इनपुट है वहां जीरो है, जहां पर डिफरेंट इनपुट है वहां पर वन है, ऐसे याद करो, ठीक है। ओके, क्लियर। यहाँ देखो, यहाँ सेम इनपुट है जीरो, डिफरेंट इनपुट वन, डिफरेंट इनपुट वन। अब यहाँ पर देखो एक चीज और, सेम जीरो एंड वन, जीरो एंड वन मतलब वन, और वन एंड वन सेम हो गया ना, तो वहां पे जीरो हो गया। तो जब हमारे मल्टीपल इनपुट्स के केसेस होंगे तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, ओके। बट लॉजिकली ध्यान से समझना है, सेम नंबर ऑफ, अगर दो इनपुट सेम है तो जीरो आएगा, और दो इनपुट डिफरेंट है तो वन आएगा। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि ये जीरो एंड वन डिफरेंट है तो वन आया, और वन एंड वन सेम हो गया इसलिए जीरो आया, ठीक है। यहाँ पर देखो, वन जीरो डिफरेंट वन, फिर वन जीरो, फिर डिफरेंट, फिर वन, ओके। तो आपको ऐसे समझना है, सिंपल लॉजिक, जहां पर दो इनपुट सेम होंगे तो जीरो आएगा, दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो वहां पर वन आएगा, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ एक्स और, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम लगा देते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्स और स्टूडेंट, ओके। Now move to the next part student, XNOR, okay, exclusive NOR gate, okay। यहाँ पर भी आपका मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमारा वन होगा, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR, ठीक है। अभी ये XOR पढ़ा ना, XOR का कॉम्प्लीमेंट है XNOR, ठीक है। ये इसका सिंबल है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने XOR में क्या पढ़ा था, जहां पर सेम इनपुट्स थे, ठीक है, वहां जीरो आ रहा था, डिफरेंट पे वन आ रहा था। यहाँ पर सेम इनपुट्स पे वन है और डिफरेंट पे जीरो है, क्लियर, ओके। सो दिस इज द सिंपल वन, दैट एक्स नॉट, और ये कॉम्प्लीमेंट होता है आपका एक्स और का। एक्स और में सेम इनपुट पे आपका जीरो आ रहा है, डिफरेंट इनपुट पे वन आ रहा है,
यहाँ पर सेम इनपुट पे 1 आएगा और डिफरेंट इनपुट पर 0 आएगा। या फिर आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। एक्स और में क्या है कि अगर नंबर ऑफ वंस हमारे इवन है और नंबर ऑफ वंस हमारे ऑड है, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो 1 आएगा, नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0 आएगा, और इसका अपोजिट हमारा एक्स नॉट पे काम करता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी? इसमें हमारे 3 रूल हैं, उन 3 रूल्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि ड्यूल ऑफ वन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एंड विद और। जहां पर एंड है उसको और से रिप्लेस कर दो, और को एंड से रिप्लेस कर दो। दो रूल हो गए। क्या बताया? एंड को और से रिप्लेस करो, और को एंड से रिप्लेस करो, वन को जीरो से रिप्लेस करो या फिर जीरो को वन से रिप्लेस करो। ओके, एंड को और को एंड से, वन को जीरो से, जीरो को वन से। ठीक है, देखते हैं। देखो, 0 + 0 इज इक्वल टू क्या? 0। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं। 0 को रिप्लेस किया 1 से, प्लस, प्लस मतलब क्या? प्लस का मतलब और गेट। ओके, इसको रिप्लेस किया एंड से, फिर 0 को रिप्लेस किया 1 से, और फिर यहाँ 0 को रिप्लेस किया 1 से। ओके, फिर से देखते हैं। 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1, plus is replaced by multiply, 1 is replaced by 0, and 1 is replaced by 0. This is the concept of students principle of duality. Okay, principle of duality. Next, ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स। हाउ टू मेक सर्किट डायग्राम फॉर एनी बूलियन एक्सप्रेशन। वो आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन देंगे, आपको बोलेंगे सर्किट डायग्राम बनाओ, या फिर वो सर्किट डायग्राम बना के दे देंगे और आपको बोलेंगे कि उसका एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में आ सकता है, राइट? तो इसको हमें ध्यान से देखना है। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स वो है ये AB+CD। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है एंड गेट। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? एंड गेट। तो ए और बी दो इनपुट हैं, दोनों के बीच में मैंने एंड गेट लगाया। उसके बाद सी और डी, सी और डी में भी मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे सी और डी लिया, एंड गेट लगाया। अब आप देख रहे हो दो इनपुट है लेकिन आउटपुट 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये ए बी आ गया, ये सी डी आ गया, इन दोनों के बीच में प्लस, प्लस मतलब और, प्लस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? और। तो यहाँ पर ये आपने और गेट लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी तो आपको उसका सर्किट डायग्राम बनाना होगा। ओके, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये मेरी एक्सप्रेशन है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी मल्टीप्लाई सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप देखो ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये ए है, एक इनपुट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या? ये एक ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये बी, इन दोनों के बीच में प्लस। प्लस का मतलब यहाँ पर कौन सा गेट आया? और गेट। ये मैंने और गेट लगाया तो यहाँ पर बन गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब एंड गेट लगाना है। मल्टीप्लाई का मतलब एंड गेट। ओके, तो यहाँ पर मैंने सी लेके उसका कॉम्प्लीमेंट करा तो ये सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ये रहा एज अ इनपुट, और ये मेरा सी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच में मैंने लगा दिया एंड गेट। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया? ये पूरी मेरी एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट लगाया, ए है ना, ए पे नॉट गेट लगाऊंगी, क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, प्लस का मतलब होता है और गेट। ओके, तो बी ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और गेट लगाया, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बन गया। ओके, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब एंड गेट। सो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इज हेयर एंड सी कॉम्प्लीमेंट इज हेयर। ओके, इन दोनों के बीच में मैंने एंड गेट लगाया, तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया स्टूडेंट? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इस तरीके से आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी जा सकती है स्टूडेंट्स, और आपको उसका सर्किट डायग्राम बनाना होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट। सर्किट दे दिया, अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है हमें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो, ये ए है और ये क्या जा रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ए और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में कौन सा गेट लगाया है इन्होंने? एंड गेट। तो ये क्या बन गया? ए डॉट बी
कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये ए को ही हमने यहाँ से ले लिया, इस तरीके से भी ले सकते हैं, अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ए एंड दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों के बीच में एंड गेट है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे और गेट है, ये कौन सा गेट है, और गेट। और गेट का मतलब होता है प्लस। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आपको कोई भी सर्किट डायग्राम अगर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा माइंड में क्वेश्चन आता है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, दैट इज यूनिवर्सल गेट। हमने इतने सारे गेट्स पढ़े आज के सेशन में, एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। ओके, इनमें से यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स हमारे दो गेट्स होते हैं स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, नैंड और नॉर। नैंड और नॉर गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, या यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? NAND or NOR can perform all the functionality of AND, OR and NOT gate, which are fundamental logical operation. इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्लियर? या फिर आपके पास क्वेश्चन आए कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल गेट्स आर द लॉजिक गेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीडिंग एनी अदर टाइप ऑफ लॉजिक गेट। ओके, मतलब मैं अगर नैंड और नॉर से भी कोई भी सर्किट डायग्राम बना सकती हूँ जिसमें मुझे किसी और लॉजिक गेट को हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स समराइज टुडेज सेशन। हमने क्या पढ़ा आज के सेशन में स्टूडेंट्स? हमने पढ़े अपने बेसिक गेट्स, डिराइव्ड गेट्स, और हमने पढ़ा यूनिवर्सल गेट्स के बारे में, राइट? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन किस टाइप से आता है हमने वो भी डिस्कस किया। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट कैसे बनाना है, या किसी भी सर्किट से बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है, ये भी हमने आज डिस्कस किया। ओके, होप यू लाइक द सेशन स्टूडेंट्स। प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो टू लर्न कंप्लीट टॉपिक। ओके, if you like my video, do press the like button, share the video with your friends, so this will help them also. Okay, and if you have any doubt, then write it in the comment section, or you can mail us also on our particular mail id if you face any problem related to computer science or any coding language. Thank you, keep watching, keep studying.